हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप पार्ट वन रैंडम वेरिएबल्स के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट था आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करता हूं विथ टेकिंग ए सुइटेबल एग्जांपल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विशंस। और फर्स्ट क्या था? रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स probability distributions. So with the help of a suitable examples, let us have a look at the experiment of selecting a family out of 10 families, that is F1, F2, F3 up to F10। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिलेक्टिंग ए फैमिली आउट ऑफ 10 फैमिलीज such that each family is equally likely to be selected। सो जो एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं उसमें से 10 फैमिलीज हैं, उनमें से एक फैमिली को हम सिलेक्ट करेंगे एंड द फैमिलीज आर F1, F2, F3 अप टू F10। क्या है? कंडीशन है ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। यदि हर फैमिली इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड होगा, सो व्हाट यू कंक्लूड हियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 सो वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ F10 इक्वल टू बच्चे कितना होगा? 1/10 होगा। अच्छे से ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पर सच दैट ईच फैमिली इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। So probability of finding F1 is equal to 1/10, probability of finding F2 is also 1/10, and so on. Probability of finding F10 is equal to 1/10. Let the families F1, F2 ऐसे करके F10 have 3, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let the families F1, F2, F3 up to F10 have 3, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 4, 5 members। F1 का जो मेंबर्स हैं 3 है, F2 फैमिली के पास 4 मेंबर्स है, F3 फैमिली के पास 3 मेंबर्स, इस प्रकार का F10 फैमिली के पास 5 मेंबर्स हैं। ओके, क्लियर? तो क्लियरली X क्या है? X क्या होगा बच्चे? X इज ए रैंडम, क्लियरली X इज ए रैंडम वेरिएबल। सो मुझे बताइए अब XF1 जो है, XF1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। XF2 4 होगा। XF3 3 होगा। XF4 2, XF5 5 है,
एक्स एफ सिक्स 4 है, एक्स एफ 7 3 है, एक्स एफ 8 6 है, एक्स एफ 9 4 है, एक्स एफ 10 what 5 है. So these are the what the possible random variables. So x का वैल्यू क्या क्या आता है, 2 भी मिलता है, 3 भी आता है, 4 भी है, 5 भी है और क्या है 6 है. ठीक है, कितना है 6 है. और एक बार बता रहा हूं कि जो फैमिलीज है F1 से लेकर F10 10 फैमिलीज है, उनके पास ये मेंबर्स है. ठीक है. सो x क्या है, x एक रैंडम वेरिएबल है. सो पॉजिटिवली एक्स एफ 1 कितना है 3 होगा, एक्स एफ 2 जो फैमिली 2 के पास क्या है 4 मेंबर्स है तो 4 आएगा. तो ऐसे ही इसी प्रकार का 10 फैमिली 10 के पास 5 मेंबर्स हैं. तो x जो रैंडम वेरिएबल इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या है 2 3 4 5 और 6, राइट. अगेन दैट इज जब x का वैल्यू 2 होता है, x जब 2 होता है तो फैमिली which family is selected here 2 when family F4 is selected, right. X equal to 3. So when families 3 कितने वैल्यूज है, families F1 F3 and F7 are selected, right students. एक बार मैं चेक करता हूं कि क्लियर आ रहा है कि नहीं. जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, राइट. So x is equal to 4 means when families F2 F6 F8 are selected. X is equal to 5 when families F5 and F10 are selected. X is equal to 6 when family F8 is selected. Okay. So what you conclude here? As you know that each family is equally likely to be selected. So probability of x is equal to 3. Probability of x is equal to 3 equal to what? X is equal to suppose 2. Sorry, x is equal to when family F4 is selected. That means you know that probability of F1 equal to probability of F2 equal to probability of F3 up to probability of F10 is equal to what? 1 by 10. So how many such families are? Only one family is F4 is selected. So positively its probability is what? It is what now? 1 by 10. Means only F4 is selected. Yani probability of F4. X is equal to 3. What it indicates? 3. How many families are? When families F1, F2, F3 and each is equally likely to be selected. So that means there are 3 families. So positively 3 into 1 by 10. So 3 by 10. Probability of x is equal to 4. Now it is what? How many families are selected here? 3. And each family is equally to be selected. So that means it is also 3 by
10, right? X is equal to 5. Its probability is what? Two families F5 and F10 are selected. It is 2 by 10. Each family is selected equally. Each family is equally like to be selected. So selecting family 5 is 1 by 10 and also selecting family 10 is 1 by 10. So it is what? 1 by 10 plus 1 by 10. 2 by 10, here 2 multiply 1 by 10. So then selecting x is equal to 6 probabilities, it is only 1 by 10. Okay. So the values of x are 2, 3, 4, 5 or 6, and probability of x is 1 by 10, 3 by 10, 3 by 10, 2 by 10 and 1 by 10, right? Right, students? So what you conclude here? We conclude the definition of probability distributions. Okay, just a minute. So students, in these examples, we got both the random variables and their corresponding probabilities. So here are the 5 random variables, 2, 3, 4, 5 or 6, and here are their probabilities. So what you get definition? What you get the definition here? Values of the random variables. Values of the random variables with their corresponding probabilities. Values of the random variables with their corresponding probabilities is known as probability distribution. Values of the random variables. These are the values of the random variables. X is equal to 2, 3, 4, 5, 6, and these are the corresponding probabilities. So values of the random variables with their corresponding probabilities is known as probability distribution of the random variable. Right? So this is the theoretical definition. Okay. Okay, students. Clear now? Now, mathematical definition. Another definition, mathematical definitions. कैसे मैं बताता हूं आपको. Okay, students. Students, this is the theoretical definition. Values of the random variables with their corresponding probabilities. जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि सिलेक्टिंग ए फैमिली आउट ऑफ 10 families, okay, such that each family is equally likely to be selected. So probability of finding each family is 1 by 10, and here are 3, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 6, 4, 5 are the members of the respective families from family 1 to family 10. So what are the here x is a random variables, and xf1 is equal to 3. Similarly, xf10 is equal to 5. So what is the possible values of x here? 2, 3, 4, 5 or 6. So here are the different random variables of the same experiment, selecting a family out of 10 families. Okay. So these are the different values of random variable. x के अलग अलग values होता है, तो उसका probabilities क्या है हमें पता चला कि as each family is equally likely to be selected. So positively probability of x is equal to 2 is equal to what? 1 by 10, because यहाँ पर x is equal to 2 means when family f4 is only selected.
x is equal to 3, that means family f1, f3 and f7 are selected. So positively 3 by 10 yani 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10 या 3 multiply 1 by 10. Okay, so what you get from here, values of random variables. So x is equal to 2, 3, 4, 5, 6, these are the values of the random variables. And what are their corresponding probabilities? For x is equal to 2, probability of x equal to is equal to what, 1 by 10. Probability of x is equal to 3 is 3 by 10. So values of random variables with their corresponding probabilities is known as probability distribution of the random variable. उसको हम क्या कहते हैं, probability distribution कहते हैं. Right? Now I think it is clear both the random variables and the probability distribution. And mathematically how we write there, et, the probability distribution of random variable x is system of numbers. ये क्या हो, system of real numbers होते हैं. So यहाँ पर यदि x का वैल्यू x1, x2 अप टू xn होता है, देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को यदि हमें p1, p2 अप टू pn लेते हैं तो pi ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट. तो 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, तो सिग्मा pi क्या होगा, दैट मीन्स p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn ऑलवेज क्या बनेगा, 1 बनेगा. कैसे होगा, मैं और एक बार इसको बता रहा हूं कि डेफिनेशन मैथमेटिकल कैसे. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स. ये सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है x1, x2, x3 अप टू xn, और उनका जो प्रोबेबिलिटीज होते हैं p1, p2 अप टू pn, तो सिग्मा pi इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो आपके सामने ये एग्जांपल जो हम डिस्कस किए थे, सिलेक्टिंग ए फैमिली आउट ऑफ 10 फैमिलीज, तो these are the random variables and their corresponding probabilities. So both is known as what, probability distribution of the random variable. So मैंने यहाँ पर mathematical बताया sigma pi is equal to 1. तो here if you add this 1 by 10 plus 3 by 10 plus 3 by 10 plus 2 by 10 plus 1 by 10, it is what, taking the LCM 10, it is 1 plus 3 plus 3 plus 2 plus 1, that means 4, 3, 7, 3, 10 by 10, it is equal to what, 1. तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर राइट और रॉन्ग. ओके, तो यानी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी व्हाट, 1. ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, उसमें से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. इसके बाद बेटे मैंने आपको मीन एंड वेरिएंस भी बताऊंगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताऊंगा, राइट. ये स्टूडेंट्स, with the help of a questions we find the probability distribution. Find the probability distribution of the number of doublets in the 3 throws of a pair of dice. So you know that when a pair of dice is thrown, how many sample space are there? 36 sample points are there. The sample space contains 36 sample points and the doublets are what, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Okay, so here let x denotes the number of doublets, denotes the number of doublets. Find the probability distribution of number of doublets in the 3 throws of a pair of dice. Okay, right. So possible doublets are what? Doublets are what? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 or what, 6 6. So what is the values of x here? 0, 1, 2 or 3. Because the pair of dice thrown thrice, 3 बार. So tell me probability of doublets here. Doublets का probability कितना होगा? So how many doublets are there? 6. If a pair of dice is thrown once, so doublets is equal to 6 by 36. 1 by 6. No doublets
नॉन डबलेट्स, वी राइट नॉन डबलेट्स is equal to what? 1 minus 1 by 6, 5 by 6. So probability of x equal to 0. Okay, x is equal to 0. That means no doublets. No doublets. And pair of dice is thrown thrice. तो दैट मीन्स पहली बार जो आएगा वो नॉन डबलेट्स आएगा. नॉन डबलेट्स, नॉन डबलेट्स एंड नॉन डबलेट्स, राइट. तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट्स. दैट मीन्स 5 by 6 मल्टीप्लाई 5 by 6 मल्टीप्लाई 5 by 125 y में 216. Probability of x is equal to 1. That means कैसे लिखेंगे हमें इसको? Probability of एक बार डबलेट्स आएगा, यानी मैं लिखता हूं इसको नॉन डबलेट्स, 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 नॉन डबलेट्स, नॉन डबलेट्स, नॉन डबलेट्स. ये भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है केसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट्स, डबलेट्स, नॉन डबलेट्स, राइट. या ऐसे भी हो सकता है नॉन डबलेट्स, नॉन डबलेट्स, डबलेट्स. क्योंकि पेयर ऑफ डाइस 3 बार हमें इसको क्या करते हैं, उछाल फेंकते हैं. तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे लिए? क्या होगा? डबलेट्स का क्या होगा? 1 बाई, डबलेट्स का 1 by 6, 5 by 6, 5 by 6. ऐसे कितना सिचुएशंस बनते हैं? नॉन डबलेट्स 5 by 6, 1 by 6, 5 by 6, 5 by 6, 5 by 6, 1 by 6. सो दैट इम्प्लाइज, ऐसे ये देखिए बेटे 3 टाइम्स होते हैं, तो 3 into 1 by 6, 5 by 6, 5 by 6 हम लिख सकते हैं. ओके, सो दैट इम्प्लाइज इट इज व्हाट? 75 by 216. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी डबलेट्स 2 बार आएगा, एक बार नॉन डबलेट्स आएगा. ठीक है, 2 डबलेट्स एंड 1, 2 डबलेट्स, 2 डबलेट्स एंड 1 नॉन डबलेट्स. ठीक है, 2 बार डबलेट्स आएगा. तो कैसे आएगा? मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं, आपको आसान हो जाएगा. 2 डबलेट्स, 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 नॉन डबलेट्स, ऐसे भी हो सकता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट्स, 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 राइट. ओके, ऐसे भी हो सकता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स, नॉन डबलेट्स, डबलेट्स, ये भी 3 बार आते हैं, राइट स्टूडेंट्स. तो डबलेट्स 2 बार होता है, तो ऐसे कितना होगा? 1 by 6, 1 by 6, 5 by 6. इसमें 5 by 6, 1 by 6, 1 by 6. फिर प्लस में डबलेट्स 1 by 6, 5 by 6, 1 by 6. तो ये कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 5 बाई में कितना? 3 मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम इसको अरेंज कर देंगे. 5 by 6 इंटू 1 by 6 इंटू 1 by 6, यानी 15 बाई में 216. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी 3 डबलेट्स इक्वल टू 3 डबलेट्स, डबलेट्स, डबलेट्स एंड डबलेट्स. तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ d, प्रोबेबिलिटी ऑफ d, प्रोबेबिलिटी ऑफ d. तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 216. अब सभी को बच्चे हम इसको हमें बना देते हैं. x का वैल्यू क्या है? क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 0, 1, 2, 3. एंड व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x हियर?
corresponding probabilities of x are what here? जीरो के लिए क्या था प्रोबेबिलिटी? 125/216। 1 के लिए कितना था? 75/216। 2 के लिए 15/216 एंड 3 के लिए 1/216। अच्छा, आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी सिग्मा पी आई पॉजिटिवली, दिस इज द सिग्मा पी आई। सिग्मा पी आई पॉजिटिवली व्हाट? 1 होना चाहिए। तो देखिए 125/216, 75/216, 15/216 प्लस 1/216 इज इक्वल टू 216। तो 125 प्लस 75 कितना हो गया? 200 प्लस 15 प्लस 1 यानी 216/16 इज इक्वल टू 1। यानी हमें क्या है? राइट। मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल डेफिनेशन में सिग्मा पी आई क्या होना चाहिए? सिग्मा पी आई आई का वैल्यू 1 to n, तो कितना? सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखिए ये 1 बन गया, तो हाँ वी आर राइट हियर। So this is the suitable example to find the probable distribution of a number of doublets in the 3 throws of a pair of dice. उसके बाद मैं मीन बता रहा हूं आपको। So students, with these questions, using these questions, I already found probability distribution. Okay. Now with this same questions I'm going to find mean. So what is mean first? Let x be a random variable. x क्या है? random variable. कुछ possible values, जो values है उसका x1 x2 x3 up to suppose xn and corresponding probabilities is p1 p2 p3 up to pn. So the mean of x, तो जो x का जो mean है denoted by mu, इसको म्यू कहते हैं एंड इज डिफाइंड एज सिग्मा एक्स आई पी आई एंड द वैल्यूज ऑफ आईज आर 1 to n। दैट मीन्स ई एक्स मीन, ई एक्स को भी हमें मीन कहते हैं। ई एक्स या म्यू इज सिग्मा एक्स आई पी आई, आई का वैल्यू 1 to n। दैट मीन्स व्हेन आई इज इक्वल टू 1 इट इज x1 p1 प्लस x2 p2। सिग्मा मीन्स प्लस समेशन x2 p2 प्लस अप टू xn pn। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां पर रैंडम वेरिएबल है और दिस इज करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर x1 क्या है? x1 यहां पर 0, x2 यहां पर 1, x3 यहां पर 2, x4 यहां पर 3 है। ओके, एंड दीज आर द प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। सो क्या होगा यहां पर? सो ex इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज ex इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? 0, यानी x1 यहां पर तो 0 हो गया। देखिए मीन कहता है x1 क्या है? द वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। x1 x2 x3 x4 अप टू xn आर द डिफरेंट, बट ये क्या है? रियल नंबर्स होता है, डिफरेंट रियल नंबर्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ओके, x के तो 0 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना? p1 यहां पर कितना? देखिए 125/216, 125/216, राइट। नेक्स्ट प्लस सिग्मा मीन्स प्लस x2 p2, x2 यहां पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 75/216, 75/216 प्लस x3 यहां पर क्या है? 2 है, मल्टीप्लाई x3 इंटू p3, x3 p3 दैट मीन्स 15/216 प्लस x4 यहां पर कौन है? 3 मल्टीप्लाई p4 क्या है? 1/216। ठीक है, हमको क्या करना है? रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देना है, डिफरेंट जो रैंडम वेरिएबल्स है उसको हमें जो रियल नंबर है अलग अलग, उसको करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद क्या बनता है हमारा? 0 प्लस 75/216 प्लस 30/216 प्लस 3/216। यदि हम ऐड करते हैं 216 हो गया और ये क्या हो जाएगा? 10
8, दैट मीन्स 1/2। ये क्या मिल गया? 1/2 मिल गया। और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मीन क्या होता है? सिग्मा xi pi, ओके, सिग्मा मीन समेशन i के वैल्यू 1 to n। तो यहां पर बेटे कितना है? 4 वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल से, यानी 4 रियल नंबर से होता है। सेम रैंडम वेरिएबल्स का 4 अलग अलग क्या होता है? डिफरेंट रियल नंबर्स होते हैं, और उनका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दिया गया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देना? उसका समेशन निकाल देना है, वो होता है मीन। ओके, एक दो क्वेश्चन आपको यदि आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। देन मैं बता रहा हूं आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये स्टूडेंट्स वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, मीन बता दिया, वेरिएंस अब देखते हैं। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल whose possible values x1 x2 up to xn occur with probabilities, सेम है, मीन जैसा है, p1 px1 px2 up to pxn रेस्पेक्टिवली। और एक बार बता रहा हूं, x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका वैल्यूज होते हैं x1 x2, पॉसिबल वैल्यूज होते हैं रैंडम वेरिएबल x के, x1 x2 up to xn, और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 up to प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। सो द वेरिएंस ऑफ x डिनोटेड बाय VARX या सिग्मा x का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi माइनस म्यू, म्यू मीन्स क्या लिया था हमने? मीन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोई जरूरत नहीं है ना, पेपर में आता है ये, ठीक है, डेरिवेशन नहीं आता, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला? ex का स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं हमें कैसे? ex स्क्वायर करता हूं मैंने, ex का स्क्वायर, सेम एग्जांपल लेके, ex का स्क्वायर, ex का स्क्वायर कितना क्या होगा? 0 का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 125 y में 216 प्लस 1 का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 75/216, 2 का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 15/216 प्लस 3 का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/216, राइट। यदि हमें इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 75/216, 4 60/216 प्लस 9/216। यदि हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 144/216। ओके, क्लियर नाउ? सो हम क्या करेंगे? वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बनता है? सो वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा एक्स का स्क्वायर क्या बनता है? ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स, यानी मीन का क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसका समेशन हमें क्या मिला? 144/216, और मीन हमारा क्या मिला था? 1/2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 144/216 माइनस 1/4। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है बेटे? 7/12। 7/12 यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7/12 बनता है। ठीक है, राइट। देखो ई एक्स का स्क्वायर, यदि हमें वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर को, इसका वैल्यू हमें क्या मिला? डेफिनेशन से मिला सिग्मा यानी समेशन xi, ओके, जो रैंडम वेरिएबल्स का डिफरेंट वैल्यूज है, तो xi माइनस मीन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जो है pxy। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला, तो ये प्रूफ कोई जरूरत नहीं तो मैं कर देता, प्रूव करा देता। ठीक है, यदि आपका कमेंट में आएगा तो फिर मैं इसको प्रूव करा दूंगा, नो मैटर। सो इसको देखिए, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स तो हमारे क्या लिए थे? मीन, तो ई एक्स का स्क्वायर मतलब जो वेरिएबल से उसका स्क्वायर करते हैं, और क्या करेंगे? उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लेके इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो। ऐड करने के बाद हमारा मिला 144/216। सो अभी हमें वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स यानी मीन का होल स्क्वायर। तो ये जो आया समेशन कितना आया? 144/216
माइनस मीन हमें पहले मिला था 1/2, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद 7/12। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, यदि बेटे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखूंगा SD, तो वेरिएंस ऑफ x का रूट ओवर यानी 7/12 का रूट ओवर। अब आप सॉल्व कर देना खुद। ओके बच्चे, सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। रैंडम वेरिएबल्स क्या है पार्ट 1 में बताया, पार्ट 2 में मैंने क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया। ओके, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके मैंने मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया। बेटे केस बेस्ड स्टडी भी आ सकता है या एक क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसको लेके ना बहुत सारे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, उसका कंसेप्ट और जैसे वेरिएबल सेपरेशंस होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो सारा बताऊंगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।